free will versus determinism. Noted, everyone? Yes, ma'am. Free will versus determination. Clear? Now, ma'am will go and somewhat explain it out. Yeah, good, ma'am. Okay, good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, shall we start? Yeah, ma'am. Okay, all right. So, today's topic of discussion is free will versus determinism. Hope you might guys have heard about these two terms. So, let me introduce the topic to all of you. This is basically free will versus determinism, right? So, these are two, basically different psychological terms, free will and determinism. So, what we understand with the free will? See, free will is basically, our will, a way of thinking, or you could say the way of, principle of a someone, a person, individual, that how we think, how we go ahead with the thinking or with the thoughts. How we have, have optimistic attitude we have, our, pessimistic attitude we have. So that is basically free will. That we are free to think, we have a liberty to, express and to thought specifically with yourself only, right? So whatever we are doing, whatever we used to do in our life with a, anything in any aspect of life, like we used to do with the free will or determinism. Now, second psychological term is determinism. What we understand by determinism? Determinism is a, that it's a, we can fix a target in our mind, means that's it, and we have to achieve that, that we are determined enough to tackle any kind of thing, to gain any kind of thing, right? Any kind of target. And we are determined, if we are very stick to our targets, we are very stick to the, we are very constrained to whatever we are going to do. That is basically determinism, that we are going ahead, but a determinism will we have, that yes, we have to do it, right? So these two different psychological terms, what are the effects, like how it affects our life, and how, what's the difference between the two, and why, like, some of the, some people used to go with the free will always, whereas some people used to go with the determinism, right? So what we guys have a, we all are different, we all have a different mindset. So what we used to think, like what, which kind of thoughts we used to go ahead, like I can go with the free will, whereas you might can go with the determinism, that yes, I have, think over it and I just have to do it, right? So this is basically topic, and just let's start discussion, that what is, how we can differentiate between the two, and how can they be effective in life, and what are their, positives and negatives, right? So who is going to be start with the introduction, or who is going to be start with the body, body, and who is going to be conclude that? Just please initiate. Ma'am, Neeraj Sharma, I want to start. You want to start, Neeraj, right? Yes, ma'am. Okay, Neeraj, Okay, you're going to one start. thing before the entire GD starts, make sure everyone has understood the meanings of free will and determinism. Kisi ko problem hai, I'll help you out. Before the GD actually starts. Anyone? Kisi ko koi problem? Understood the terminologies? बोलो भाई जल्दी। मैम अगर आप डिटर्मिनिज्म थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। See, I'll explain you. Free will. मॉर्निंग में उठते हैं सारे लोग. It is our choice. हमने उठ के खाना बनाना है, नहीं बनाना है, कितने बजे उठना है. That is independence. Free will is a kind of an independence. Like it is up to you. Whatever you want to choose in your life, that is a free will. Up to your comfort. जैसे हम बोलते हैं ना, एक होता है हमारी लाइफ हमारी मर्जी से चल रही है, राइट? हम अगर चाहें, अगर हम तैयारी करेंगे, हम पेपर क्रैक कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे. एक का माइंड होता है. हम कई बार बोलते हैं डेस्टिनी पे चीजें छोड़ दो. डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म होता है कि कुछ इवेंट्स दे आर गोइंग टू हैपन. डिटर्मिनिज्म आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर कार है, ऑल इज ओके, मतलब कार को आपने ऑन किया, उसका इंजन आपने वो किया, आई वुड से इट आउट, की प्रेस की, इंजन इग्नाइट होना शुरू हो गया. आपको पता है जैसे ही आप क्लच पे रखोगे, ब्रेक साथ में एक्सीलरेटर दबाओगे, कार चलेगी, हाँ या ना? That is something that event is going to happen. You're very sure about it. Free will is all about your choice. Determinism is based on certain facts and that is going to happen even if it is not your choice. अब clear हुआ? Easy language में. मैम फ्री विल को ऐसा बोलते हैं गोइंग विद फ्लो.
गोइंग विथ फ्लो, मतलब आपकी मर्जी। अगर मैं एक सिंपल टर्म में बोल रही हूँ, आप बेड से उठ के आप कितने बजे उठना चाहते हो? 5 बजे उठ के वॉक करना चाहते हो? 8 बजे उठ के सीधा ऑफिस जाना चाहते हो? अप टू योर कंफर्ट, राइट? आप शाम को डिनर में जंक खाना चाहते हो, हेल्दी स्नैक्स खाना चाहते हो, कीटो करना चाहते हो? योर चॉइस। मतलब फ्री विल इज ऑल अबाउट योर इंडिपेंडेंस. Determinism is all about the events, the fate which is going to happen before even if you analyze it out. अब clear है सबको? I think now see what has made it easier is giving more and more examples, right? I want same way. आप एग्जाम्पल्स पे जाओ. कई चीजें होती है, कई लाइफ में हम बोलते हैं हम पेपर नहीं क्रैक कर पाए. आई थिंक हार्डवर्क के साथ साथ डेस्टिनी भी होनी थी. रेगुलेट हो गई डेस्टिनी, राइट? कि आपकी अकेले की चॉइस नहीं, आपकी डेस्टिनी भी वर्क कर रही है. दैट इज सम थिंग्स आर डिटर्मिन्ड टू हैपन इन योर लाइफ. You are helpless in that case. Your future partner, your fate, your whatever is going, your lifespan. I wouldn't say it's a free will. ये लाइफ हमारी फ्री विल नहीं है. It's determined, right? तो वो चीजें कुछ सोचो, अपनी तरफ से comprehend करो. It's a philosophical topic. You can think in as many directions and think Shika ma'am will go best with the feedbacks today too. Clear? In case you have any query, I'll solve it out with you. Okay? Chalo, all the best guys. Shika ma'am, please check it out. Who is going to introduce and conclude today? So Neeraj, I think you're going to start today, right? Yes, ma'am. Okay. Next, please, we're going to start with the bodies, who's going to interpret the content. जी मैम. शशांक. Sashank. All right. And who is going to conclude the topic? Ma'am, I am Rishabh. Harishav. Okay. Rishabh. Rishabh. Okay. Fine. Okay. All right. So shall we start? Yes, ma'am. Okay, Neeraj, go ahead. Ma'am, can I take 2 minutes? Yeah. Yes. The topic Neeraj is preparing for that. Saurav, you're not audible properly. Could you please repeat? Ma'am, as Neeraj is preparing for that, can I introduce the topic? Ma'am, I guess I will. Yeah. If you're thinking, then you may start. Tell then. Okay, friend, my name is Saurabh Sharma, and I took the opportunity to introduce about the topic of our discussion. Friends, today our topic of discussion is free will versus determination. So, friend, free will, as I said, that take example in which we have our own will, and we said that we have flow in which we are free to take decision. पर ये कहते कि मेरे को बोलना नहीं. We are free to take our own decision. That is no depend on others, no other forces, no external internal forces. Determination is something which is depend on destiny, other external things. I guess that's all about the topic, and I open the house for discussion, and yeah, we can start. Hello. This is Shashank Hello. Agrawal. दिस इज शशांक अग्रवाल. आज हमें टॉपिक दिया गया है जिसमें हमें पूछा गया है कि फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म में अंतर क्या है. तो मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा या जो आप लोग को ठीक लगेंगे, आप लोग भी अपना मत दीजिएगा उसमें कि व्हाट इज वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. ठीक है. तो फ्री विल हम उस चीज को कहते हैं कि जिसमें हम अपने पास से कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमको क्या है कि अपने माइंड में कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना होता है. हम विदाउट फ्री माइंड उसको करते हैं. ये वैसा कार्य होता है कि जिसमें हम लोग एंजॉय करके करते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए यदि आप कोई जॉब करते हैं, कुछ आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, कुछ 12 घंटे करते हैं, कुछ 14 घंटे करते हैं. तो वो 8 घंटे की जॉब यदि आपने फ्री माइंड के साथ नहीं करते तो उसमें आपका माइंड थक जाता है. योर माइंड स्लिप्स डाउन. लेकिन यदि आप उस जॉब को एंजॉय करके करते हैं तो आप थकते नहीं हो. आप उस जॉब को एंजॉय करते हो. तब उस जॉब को आप 8 घंटे भी कर सकते हो, 10 घंटे भी कर सकते हो, 12 घंटे भी कर सकते हो. तो इस तरह की जॉब को बोलेंगे फ्री विल जॉब. लेकिन मान लीजिए कि यदि हम पढ़ाई के टर्म में बात करें, स्टडी के टर्म में बात करें, कि फ्री विल में आपने सोचा कि चलिए हमको जो है गेट 2024 का क्रैक करना है. और यदि ये मान लीजिए आप एक साल का टारगेट आपने लिया कि गेट 2024 में क्रैक करना है. यदि नहीं हुआ तो उसमें गेट में कुछ रैंक तो आई गई है, हम लोग आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं. तो आपने बैकअप रखा हुआ है कि ये यदि 2024 में हमें पावर ग्रिड में सिलेक्शन नहीं मिला या फिर किसी और पीएससी में सिलेक्शन नहीं मिला तो हम लोग आईआईटी कर लेंगे. ठीक है.
तो ये है आपका फ्री विल, मतलब ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए एक डिटर्मिनिज्म जो हमको दूसरा टॉपिक मिला हुआ है, इसका अंतर फ्री विल से ये है कि आपने सोचा कि गेट 2024 ही क्रैक करना है, और गेट 2024 में यदि हमको पीएसयू नहीं मिला तो हम आईआईटी में एडमिशन नहीं लेंगे, हम एमटेक नहीं करेंगे, हम पीएचडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीएसयू में ही इंजीनियर बनेंगे। तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। जैसे मान लीजिए एक दो और भी लोग जैसे तैयारियां करते हैं, यूपीएससी तैयारी करते हैं, कि जब तक सिविल सर्विस हम क्रैक नहीं करेंगे तब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और कोई नौकरी हमें करनी नहीं है। तो उससे हम बोलते हैं ना डिटर्मिनिस्टिक, वी आर डिटर्मिनिस्टिक टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, हम और कोई नौकरी करेंगे ही नहीं। तो इसका नेगेटिव पक्ष ये है, तो इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि हम अपना कुछ 2 साल 4 साल 6 साल हम सिर्फ एक टारगेट के पीछे पड़े हुए हैं, हम लाइफ में और कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम और कोई अपना जो हमारी जीविका है, जो हमारी लाइवलीहुड है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे। We are deterministic only on one same goal only. तो I इसका totally agree और with ये है कि Shashank हमको that समय what पे he is Hello. saying. Hello. What he is saying that free will में इजी काम आसानी से हो जाता है और किसी टफ काम करने के लिए डिटर्मिनेशन। तो इसके कारण हम एक क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे विराट कोहली के साथ काफ़ी स्टूडेंट ने काफ़ी क्रिकेटर्स ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो ग्रोथ विराट कोहली ने अचीव करी है वो बाकी अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि विराट कोहली के जो रूटीन्स और रिजिम्स है क्रिकेट में वो बाकी क्रिकेटर से काफ़ी टफ है। तो वो उसका डिटर्मिनेशन के कारण ही हो पाया है वो उस लेवल पर अचीव, और बाकी अभी तक डाउन पर ही है, उसके लेवल पर कोई अचीव नहीं कर पाया। तो ये एक रियल From लाइफ एग्जांपल है। I agree with uh, Danish. We cannot leave everything on free will. There are certain processes that we have to perform to achieve certain success. So that comes under determinism. So there should be a balance between the free will and determinism. Some deterministic methods we need to follow to get the success. from my point of view, I think the free will is to listening our heart. While we are don't having any rules and regulation in our life, but as we can, but on other point determinant in there we listen to our mind, and we are bounded by certain rules to achieve something. हाँ, मैं नीरज से एग्री करता हूँ। मतलब सबका लाइफ टाइम का ड्यूरेशन फिक्स है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा एक्सीड करते हैं, मतलब ज़्यादा ग्रोथ करते हैं लाइफ में, और कुछ लोग कम कर पाते हैं। तो उसका मेन कारण ही यही होता है कि कुछ लोग जो डिसीजन मेकिंग पावर है और जो लाइफ में कुछ करना है वो अपने गोल्स फिक्स होते हैं और उन पर मतलब काम करते हैं एकदम। और कुछ लोगों का होता है कि मतलब जो मिलता है वो उसी में खुश है, जो मतलब अचीव हाई एंथुसियास्टिक नहीं होते और डिटर्मिनेशन नहीं होता है, तो वो उस लेवल पे इतना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, तो उनका डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है डिसाइडिंग। Yeah, Danish, I agree with I you. The point you mentioned that for a task which is of high importance in our life, we need to have a deterministic approach, but we cannot always have a focused and deterministic approach. We do need a balanced approach in life, but also the fact is that not always we can go with a happy-go-lucky attitude, because that might not give us the proper results. but Also, free to will add may to I this, think that, but I can say that free will may lead to the creativity. As when we are free, we think more, and we think around very much, and by determination it leads to the hard work. As we are determining, with this we are doing the hard work. So uh, I totally agree with Neeraj that to what add he to is saying Neeraj's that point, free will so in create case of if we talk about in mind will creative open field, and then choices we will be more. require free will. But what is Because the in problem creative field in we need to take certain risks, free and will when is those and risks pay off, then we determination get is that success in case of creative field. So in creative field, Guys, free guys, will is guys, very necessary. guys, excuse me. Please, one by one. One by one. Okay. Just make your ideas clarity. Make your ideas clear. Just I can hear you. So guys, 1 to 1. Okay. Please take care of. फ्री विल और डिटर्मिनिस्टिक दोनों ही चीजें जरूरी हैं, क्योंकि हम हमेशा डिटर्मिनिस्टिक हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि एकदम हमने एक ही टारगेट बना लिया, उसको यदि हम पूरा नहीं करेंगे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे ही नहीं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ भी एंजॉय करना है और अपना गोल भी अचीव करना है, दोनों चीज हमें करना है। तो सीधा हम हमेशा फ्री विल और डिटर्मिनिस्टिक दोनों को एक साथ लेकर हम चलेंगे, तो हमें लगता है कि हम लाइफ को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। So I am I'm I am agree totally with agree with Shashank my what friend is that Shashank is saying that I am totally agree with my friend
that free but as we can say that in our daily work we are determined to our jobs and day. So we need both free wills and a determination. So for this we are generally assigned a cheat days type thing. So as a weekend we think we will wake up late and we will not go with the time. So I I think we need the combination of both. I I totally agree with Neeraj what he is saying. But here comes the factor of what we want to achieve. If the something is related to like our career, then we need determination. And if something is not related to like going to weddings and partying with friends, here we don't need any determination. We can go and we can't go. We have the choice. That here there is no need of any determination. But if the work is of utmost importance, then we need determination to do this. And Sorry, this is Danis, I don't agree with you. In free will, we can understand that when we are following our passion, when we did not care about the end result, and at that time we are more creative. Maybe in if we follow our free will, we can become more successful. In determination, we are efficient. We care what happen in the end. So something I But guess. we सौरभ can take आपने the बिल्कुल example सही of कहा. any exam like तो cracking GATE 2024. Everyone gives exam, but none of them tops. There's only few tops, and because of the determination only they tops. Not everyone tops, and someone only give exam by sitting that only we have to qualify. There is only will is there to sit, not any determination. I agree, Danis. जी, Just look सौरभ at the आपने case of a बिल्कुल जी singer. सौरभ आपने बिल्कुल सही कहा था. बिकॉज सौरभ जी ने अभी बोला है कि जो फ्री विल में क्या होता है कि हम लोग बिना माइंड में प्रेशर लिए हुए कार्य करते हैं. हम अपने एंड रिजल्ट की बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं. लेकिन डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम ये कार्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. हम कंटिन्यूसली इसी चीज को सोचते रहते हैं यार हमें करना ही करना ही करना ही है. पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा. वी हैव सम डाउट्स इन आवर माइंड. बट फ्री विल में क्या है, हम लोग बोलते हैं ना फ्री माइंड को फ्री करते हैं कि बिल्कुल हमारे माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ ठीक है यार करेंगे अच्छे से कर लेंगे हो जाएगा. लेकिन डिटरमिनिस्टिक में यही हो गया कि हम अपने माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर लिए होगी यार ये नहीं हुआ तो हम कुछ कर ही नहीं है. जैसे होता नहीं कि डेट नहीं निकला तो यार हमारी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ऐसा हम सोचने लगते हैं. जबकि वी I हैव समथिंग totally एल्स दैट. I जैसे totally हमारे पास ये agree with दिमाग में कि Shashank डेट में that कुछ 1000 रैंक आ गई तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी बर्बाद होगी हमें पीएसयू नहीं मिला तो. लेकिन हमारे पास क्या है सर, हमारे पास कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है. बिग बिग कंपनीज एबीबी है, सीमेंस है. हमारे पास और भी ज्यादा ऑप्शंस है. देखिए हमारा माइंड क्या है ब्लॉक्ड हो चुका है कि हमको किस पीएसयू में लेना है. जबकि हम ये नहीं सोच रहे. वी हैव 1000 रैंक, हम वी हैव सम मोर ऑप्शंस. फ्री विल में ये है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं पीएसयू मिलेगा तो ठीक है लेकिन हम और कोई ऑप्शन खोजेंगे. हम लाइफ जीना बंद नहीं कर देंगे. हमारे पास विल कलेक्ट सम मोर ऑप्शंस. हम एबीबी में जा सकते हैं, हम सीमिस में जा सकते हैं, हम आगे फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं एमएस करने. वी हैव मोर several options in the free will cases. Yeah, guys, I Also, I also free want. will totally and agree with Shashank determination. that what you are saying, but problem is that if someone wants to start and he wants to achieve something, so he must be deterministic. Otherwise, the end result will be like nothing he will get, and he will spend too much time on it. Therefore, free will work will be must be given to importance where there is no like importance. If it doesn't get anything, if doing any work, then free will we can say. But if you are spending too much time on any work and you get nothing, then this is the problem. And if Yeah, the person is I determined to do something, then he will get I something. think He will get anything. I think. Also, it is not I always think to our choice that we want to choose between free in will or today's world. determination. Suppose we want to work in a free environment, but the environment around us supports that every process should be deterministic. Then we have to adapt to that. So there should be a balance between free will and determinism, I So think. I think we can all I agree think to here live that a disciplined life, opportunistic nature determination should and be there. adaptability is attacked to free will here. So that will lead to high risk and high reward situation, which is probably not a possible scenario for deterministic nature. I think to live a disciplined life, the person should be determined and to achieve the success and to if we for we being a happy person, the person choose the path of the free will. अब हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि हम मतलब अपने बिलियनर्स है कि जिन्होंने हम अपने सक्सेस डेली अचीव करा कि हम है अपने फ्यूचर मतलब अभी वर्ल्ड में लाइक एलोन मस्क, रघुराम राजन जो स्पोर्ट्स में है, रोनाल्डो, तो वो सब डिटर्मिनिस्टिक थे अपनी लाइफ में, उनका गोल फिक्स था और उन्होंने उसी पे वर्क करा और उन्होंने मतलब टाइम को डिवाइड करा है अपना एकदम अपने गोल, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है अपने गोल को अचीव करने में।
तो ये एक एग्जांपल है डिटर्मिनिस्टिक पर्सन्स का। Yeah, I also want to add, यदि Aritra, हम in अपना एक today's दिन का टारगेट सेट करें, यदि हम अपने डेली रूटीन का टारगेट सेट करें कि आज मुझे सुबह उठ के ये काम करना है, यदि हमने उसका एक टाइम टेबल बना लिया कि यस मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, फिर 5 बजे आ जाना है, फिर 5 बजे के बाद 1 घंटे मुझे खेलना है, देन मुझे कुछ खाना पीना है, देन मुझे जो है रात में न्यूज कुछ भी करना है, उसके बाद हमें यदि टाइम टेबल यदि हमने सेट कर रखा है कि यस इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो हम लोग बोलेंगे यस यस डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हिज लाइफ। देखिए फ्री विल में क्या हो गया, आपने कुछ डिटरमाइन नहीं कर रखा है, यस हम 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, उसके बाद ठीक है थोड़ा बहुत खेल लेंगे, बट यू डोंट हैव एनी अमाउंट ऑफ टाइम कि कितना खेलेंगे, कितना क्या करेंगे, कितने घंटे जॉब करेंगे, तो वो फ्री विल में आ गया। Yes, Asangji, I also want to add something into that. In today's world, in which everyone are following different risks, everyone in the competitions, those who are choosing their free will, they might be have low success, but who are following the path of the determination may have more chance Yes. for success. I guess so. In my belief, Yes. if that's true. There are more positive and negative both the things in these two words. Some has some positive things in the free will, and determination is also some have positive and negative things, Yeah, because yeah. जैसा कि मैंने पहले बोला और आप लोगों ने भी बोला, आप लोग के भी पॉइंट्स काफी अच्छे थे, बिकॉज क्या है कि डिटर्मिनेशन में भी कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन नेगेटिव तो यही है कि यदि आपने टारगेट सेट कर ये नहीं हुआ तो क्या, यदि हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जो भी आपने टारगेट सेट करा अपनी लाइफ के प्रति वो हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, काफी ज्यादा समय आपको बर्बाद हो चुका है उस डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के चलते। यदि नहीं हुआ तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। I Yeah, agree with these are शशांक what you are saying that अगर कुछ टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या, लेकिन फ्री विल में तो पॉसिबिलिटी माइंडसेट ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हाँ अगर होगा ही नहीं तो चल जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से स्टार्ट करता है तो उसका चांसेस हाई होता है किसी भी वर्क को कंप्लीट होने का और उसका गोल को अचीव करने का। फ्री विल में तो वैसे भी उसने ये सोच कर ही स्टार्ट करता है कि देखिए हाँ कि नहीं होगा तो मतलब वी विल बी इन सेफ जोन। तो ये अप्रोच देखिए थोड़ा एक फ्री विल का 50-50 हो जाता है, देखिए डिटर्मिनिस्टिक में फ्री विल थोड़ा। का एक मुझे और एग्जांपल अभी समझ में आ रहा है। फ्री विल का एग्जांपल हम एक ये दे सकते हैं कि हम यदि हम गेट की तैयारी करते हैं तो हम हमने अक्सर सुना होगा कि बीटेक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट या फिर पहले साल जो तैयारी करता है वो ज्यादा निकालते, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी वेरी हाई मेंटल प्रेशर इन हिज माइंड। बहुत ज्यादा उनके माइंड में प्रेशर नहीं होता है, वो आराम से तैयारी करते हैं, निकाल ले जाते हैं। लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं गेट की तैयारी में या फिर सिविल सर्विस की तैयारी में, जो 2 साल 3 साल 4 साल निकालते हैं, वो डिटरमाइन रहते हैं कि नहीं मुझे गेट निकाला निकाला, लेकिन वो अपने माइंड को ज्यादा प्रेशर में नहीं चिपते होते, यार नहीं निकलेगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद। लेकिन सॉरी अब टू ये एक स्टूडेंट इंटरप्ट जो बैठा है, शशांक बट योर एग्जांपल इज आई थिंक इट इज रॉन्ग। बट फोर्थ ईयर स्टूडेंट के पास ज़्यादा लोड होता है एज कम्पेयर टू ड्रॉपर, क्योंकि फोर्थ ईयर वाले को बीटेक के प्रोजेक्ट भी होते हैं, उनको गेट भी क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो बाय लक या बाय चांस बनते हैं, उनका डिटर्मिनेशन तो होता है, डिटर्मिनेशन होता है तभी वो टॉपर बनता है, बाय चांस कोई भी टॉपर नहीं बन पाता। जी आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन बस मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेनी स्टूडेंट्स क्रैक, मेनी फ्रेशर्स क्रैक गेट एग्जाम, नॉट रिपीटर्स। आई थिंक एज हम जैसे एक एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाता है कॉलेज जाता है, अगर वो फ्री विल पे होगा तो वो कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा है, पर एक डिटर्मिनेशन चाहिए जो कि स्टार्टिंग मतलब स्टूडेंट के अंदर बनानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से डिटर्मिनेशन एक मेन क्वालिटी है मतलब स्टूडेंट के अंदर होना, और किसी भी हाँ प्रोफेशनल नीरज, पर्सन के लिए। आई एग्री विद नीरज। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए वो टॉपर के माइंडसेट मतलब शेड्यूल फॉलो करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, तो वो शेड्यूल कंसिस्टेंसी फॉलो होता है और उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता है कि मुझे क्या क्या सेक्रीफाइस करना है मेरी लाइफ में, किस वर्क करना है, तो ये एक फैक्टर होता है। फ्री विल में आप लोड फ्री होते हैं कि नहीं होगा तब भी चल जाएगा, होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन आप आई एम डिटर्मिनेशन करते हो तो आप डेफिनेटली टारगेट को अचीव कर पाते हैं। But if we are always focusing on determination, then it will add more pressure on us. So I think we should create some flexibility between the two. We have some days that we do not want to study that day for 8 hours or 10 hours, which we have determined that we will study. So we need to keep our schedule flexible according to that also. So there comes the importance of free will. So we generally we just take example, just if we are matlab studying for 2 hours or 3 hours, then we find a motivation that after 3 hours I will play for 1 hour for it. I will give time to
for myself for 1 hour. So it will be a combination of both free wills and determination. So And although we ये are भी gonna this is the need best free ये भी will part. कह सकते हैं to that student Correct. life only, because student life में खाली free will और determination का रोल नहीं आता है, एक्चुअली वर्क प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है कि किसी को तो अब डिटर्मिनिस्टिक मुकेश हम अंबानी ये भी बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने अभी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा जो बजट सेशन अभी हुआ था 2024-25 का जो बजट आया, तो हमने उसमें एक टारगेट ले रखा है कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर के थ्रू उसको 2030 तक हमें 30 गीगावाट तक करना है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमने क्या किया, एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रखा कि 30 गीगावाट तक हमें जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, और उसको ग्रिड से इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हुआ, 30 गीगावाट हमको करना ही करना है। ठीक है, हो सकता है उससे हम 26 कर पाए, हो सकता है हम 27 गीगावाट कर पाए, लेकिन यदि मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा होता कि हाँ ठीक है, जितना करो सब करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री विल में क्या होगा, यू डू नॉट हैव एनी टारगेट कि आपको कितना गीगावाट सोलर एनर्जी ग्रिड से इंटीग्रेट करना है। तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मतलब 30 गीगावाट आपने लेकर रखा, आप 27 भी हो गया तो कोई बात नहीं, 28 मतलब 80 से 90% टारगेट यू आर गोइंग टू अप्रोच। ठीक है, और फ्री विल में हो गया कि यू डोंट हैव एनी टारगेट इवन, है ना। फ्री विल में आपने कोई टारगेट ही नहीं सेट करता, बस कहा कि वी विल integrate some kind of some amount of solar energy into the grid. Guys, Okay, guys, guys, guys. so please Yeah, conclude the topic. Please yeah. conclude the I'm So, going to friends, I conclude now it. take the opportunity to conclude today's discussion. Some really great points were discussed today, and although we could not reach a consensus, we can all agree that the discussion was really good today. So, one thing that Danish mentioned was that for a task which is of high importance to us, a deterministic approach is needed because we need to set a target and achieve the target. So we cannot always depend on a happy-go-lucky attitude, because for achieving a target, deterministic nature attitude is needed. And but also Oricho mentioned that flexibility is also a thing that comes because of the free will nature. So I believe that a balance between the two is needed at all times. So Neeraj also mentioned that free will leads to creativity. So I think we can also add here that free will can be associated with adaptability and opportunistic nature. And this kind of attitude will lead to a high risk, high reward situation. For leading a life of less stress, or for leading a life where we need to sacrifice less, I think we should go for a free will kind of nature, although we cannot always go with one direction only. So Danish also mentioned the names of few celebrities like CR7, Cristiano Ronaldo, and Elon Musk, who follow deterministic nature to reach the successful position they have reached today. So in the end, we need a balance between the two to lead a successful and meaningful life. Thank you all. Ma'am, can I add some point? I think he have Yes, conclude very correctly. Yeah, just some point. Uh, Friends, like we all are preparing for the competition, and I guess if we hybrid ourselves to balance this free own will and determination, I guess we can. Then there will be nothing to regret in the end if we fail. I guess that we have to maintain the balance. That's all. okay. So are we done? Yes. Yes, ma'am. All right. Okay, guys. So very good points, I would say. काफी अच्छा बोला आप लोगों ने. But you know that free will versus determinism आप लोगों का थोड़ा सा 60-40 चल रहा था, right? So what I found is कि 60% you guys are saying कि determinism थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, right? As compared to free will. Let's अगर मैं if I that used to give your remarks on whatever you have spoken, I would like to start with the Neeraj. Neeraj, are you there? Yes, ma'am. Okay. So Neeraj, आपने बोला कि फ्री विल वाज क्रिएट क्रिएटिविटी, लाइक अगर हम फ्री हैं तो हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट. काफी अच्छा पॉइंट था. ठीक है कि अगर हम फ्री हैं तो बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी एनहांस कर सकते हैं एंड ऑल दैट. दैट्स गुड. आपने 3 टाइम्स इसमें अपनी डिस्कशन पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश की बेसिकली. ऑल्सो अगर हम फ्री है, क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, इट्स ओके. बट उस क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनिज्म चाहिए ना. लाइक वी हैव टू डेडिकेट टुवर्ड्स द थिंग,
राइट? सो वी कैन नॉट जस्ट थिंक ओवर इट, वी कैन नॉट जस्ट मेक इन द फ्री विल कि हाँ हमने सोच लिया, हम बहुत ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं हमारे माइंड में, बट उन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टिल वी नीड डेडिकेशन, राइट? सो जब भी आप अपने पॉइंट्स को बोल रहे हो उसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है नीरज, ऑल राइट? लाइक हम इसको सिर्फ फ्रेजेस में या वर्ड्स में नहीं बोल सकते हैं कि फ्री विल ऑलवेज क्रिएट्स क्रिएटिविटी और लाइक दैट इट एनहांस क्रिएटिविटी, ओके? आपने उसको जो कॉज तो दी, उसका फैक्ट भी दो, ठीक है, उसका रिलेशन भी दो, यू शुड हैव इंटरलिंक द आइडियाज, ऑल राइट? इट्स अ गुड ट्रायल, आपने 3 टाइम्स उसमें एंटर करने की कोशिश की, बट आप थोड़ा सा और ज्यादा इसमें बेटर कर सकते हो, ठीक है, और ज्यादा पार्टिसिपेटिव हो सकते हो। ऑल्सो अपने पॉइंट्स को नॉट इन द फ्रेजेस और वर्ड्स ओनली, थोड़ा सा उनको कोलैबोरेट करो, अपने आइडियाज को थोड़ी क्लियरिटी लेके आओ, ऑल राइट? या शशांक, आर यू देयर? जी मैम। या शशांक, वेरी गुड, आपने एटलीस्ट 5 to 6 टाइम इसमें एंटर करने की कोशिश की, पार्टिसिपेट किया, एंड यू हैव गिवन वेरी गुड पॉइंट्स, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके जो जितने भी बार आपने एंटर किया है जीडी में, ठीक है, आपने जितने भी पॉइंट्स यू हैव गिवन, वो थोड़े रिपीटिव थे, थोड़े रिपीट हो रहे थे बार बार, समझ रहे हो? लाइक आपने पहली बार एंटर किया, वो आइडिया न्यू था कि मैम फ्री विल है तो हम इंजॉय करके काम कर सकते हैं, ठीक है, 8 घंटे की जॉब है, पर वही क्वेश्चन फिर से आता है, 8 घंटे की जॉब है, अगर आप फ्री हो, अगर आप खुश हो कि यस आई हैव टू डू माई वर्क विद वेरी इंथुजियाज्म एंड ऑल दैट, एंथुजियाज्म में डिफरेंट थिंग, ठीक है, आप एक्साइटेड हो, आप बहुत डिटर्मिनिज्म हो कहीं ना कहीं, बट वो जो फ्री विल वाली चीज है ना, अगर मैं सोचूं कि मेरी 8 घंटे की जॉब है और मैं फ्री हूँ सोचने के लिए, करने के लिए, राइट, तो मैं कभी करूंगी नहीं, nobody wants to be here in the office or like that, है ना? सो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी शशांक, आपने जितने आइडियाज बोले ठीक बोले, एक थोड़ा सा हिंड्रेंस आपके पॉइंट्स में मैं ये बोलूंगी, आप थोड़े लंबे पॉइंट्स बोल रहे हो शशांक, ठीक है, जी मैम। आप 1 और 1.5 मिनट्स आप ले रहे हो, मतलब एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो देखो बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा हिंड्रेंसेस है और आपके लिए भी, जब आपने सोच लिया कि हाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स देने और बहुत बारी पार्टिसिपेट करना है, तो यू शुड हैव हेल्दी डिस्कशन इन द सेंस कि आपको थोड़े आइडियाज अकॉर्डिंगली देने, ऑल राइट? जी ठीक मैम। है, या आज शशांक जो रिपीटिशन वाली चीज है वो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज आप बार बार बोल रहे थे कि मैम फ्री विल को हम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनिज्म को ऐसे कर सकते हैं कि डिटर्मिनिज्म कुछ चीजों के लिए होना जरूरी है कि हमें अपनी जॉब करनी है या फिर हमें कुछ कोई भी एग्जाम क्रैक करना है या लाइक दैट, ठीक है। आपने एक और चीज बोली कि मैम, आपने एक और चीज बोली कि मैम अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो उसके लिए तो डिटर्मिनिज्म चाहिए, ऑल राइट, ठीक है, लेकिन और चीजों के लिए हम फ्री विल भी रख सकते हैं, ऑफ कोर्स डिटर्मिनिज्म वहां जरूरी है, लेकिन आप देखो दोनों पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना साथ में, आपने यूपीएससी के लिए तो बोला कि डिटर्मिनिज्म जरूरी है, क्या चाहे छोटा सा ही पेपर है, क्या उसके लिए हमारे पास मतलब वो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनिज्म चाहिए होगा ना, थोड़ा सा तो डेडिकेट होना पड़ेगा, चाहे वो केजी क्लास का पेपर हो या फिर यूपीएससी का हो, ऑल राइट? जी जी। ठीक है, आप हिंदी में बोल रहे हो, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, आप किसी भी भाषा में बोल रहे हो, आप कुछ भी अपना पॉइंट रखना चाहते हो शशांक, थोड़ा सा ही देखना है जी। कि हम अपनी बात में खुद ना फंसे, मतलब हमें दोनों चीजों को मिक्स मैच नहीं करना है, ठीक है। आप जी 5 बार एंटर कर, आपने 6 बार एंटर किया, एंड दैट्स वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा एंटर गुड। किया आपने, बट आई वुड से कि जी। देखो आप आइडियाज रिपीट नहीं होने चाहिए, बार बार हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ फ्री विल बहुत अच्छा है या फिर डिटर्मिनिज्म होना चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो, जब आपने ठान ही लिया है कि आपने सोचा ही है कि मैंने इतनी बार पार्टिसिपेट करना है, तो आप उस चीज को डिवाइड कर सकते हो कि यार इस टाइम जो मैं बोलूंगा तो मैं इसके बारे में बोलूंगा, सेकंड टाइम मैं बोलूंगा तो मैं इसके बारे में बोलूंगा, गॉट इट? जी मैम। या गुड मैम जब ट्रायल, टॉपिक में बहुत क्या है, अच्छा मैम आपका। जब ये टॉपिक ऐसा था कि बहुत ज्यादा पॉइंट निकल नहीं रहे थे, मतलब सीधा सीधा दिख रहा था कि डिटर्मिनिस्टिक मतलब हमको एकदम करना ही करना है वाला सिचुएशन आ रही है, तो इसलिए ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलना क्या है, लेकिन बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हाँ नहीं, दैट्स गुड, दैट ऐसा भी नहीं है, ये टॉपिक थोड़ा साइकोलॉजिकल है, ये हर इंसान हर था। ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो हाँ सकता है, राइट? जी। क्योंकि आप हो सकता है डिफरेंट सोचो, मैं डिफरेंट सोचूं, राइट? आपके लिए हो सकता है हम्म। डिटर्मिनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी हो, मेरे लिए फ्री विल बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं प्रेशर नहीं लूंगी तो हाँ मैं अफेक्टिव हो सकती हूँ, ठीक है। हाँ सो हाँ हाँ। टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बट हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की यूज करनी है, ऑल राइट? हम्म,
जी मैम। ठीक है. Also, ठीक. good trial, Shashank. Very good. थैंक यू मैम. Okay, Rishabh, are you there? Yes, ma'am. Okay, Rishabh, you have concluded the topic and you have given some point, right? In between. So you have said that, ma'am, high priority task need determinism or like that, something like that. So, okay, high priority task need determinism. So that low priority task or the task which we consider on the second number, on third number, do they don't want any determinism? If you want, let's suppose you want to study physics first. All right, you want to study physics first and you want that I have to clarify this concept today only. All right, and what about chemistry then? And then what about biology? For your NEET exam, for your GATE, whatever you are doing, you have to clarify 3 of them. All right, so that is the thing you need to take care of. All right, ऋषभ, ऑल्सो आप थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो, मतलब 9 to 10 पार्टिसिपेंट्स है या कुछ, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, तो आपने 2-3 बारी ट्राई किया, 2-3 बारी आपने एंटर किया, दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है, बट आप उससे ज्यादा भी एंटर कर सकते हो. और थोड़ा सा जब हम ग्रुप डिस्कशन में होते हैं ऐसा कुछ, तो यू नीड टू बी लिटिल ऐसा नहीं है कि लड़ना शुरू कर देना या कुछ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थोड़ा सा बोल्ड होना जरूरी है. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. लाइक देखो, आपने अपने अदर फ्रेंड्स को भी देखा होगा कि वो कैसे एंटर कर रहे हैं पार्टिसिपेशन, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तुमसे. ठीक है, सो डू नॉट वेट फॉर द, लाइक ठीक है, एक इंसान बात कर रहा है, आपको सुनना होगा दूसरे को, बट स्टिल यू नीड टू प्रिपेयर विद योर पॉइंट्स. ओके, एक्सक्यूज. हाँ, ओके ऋषभ, आर यू देयर? Yes, ma'am. या ऑल्सो ऋषभ, यू हैव कंक्लूडेड वेल. आपने सबके पॉइंट्स को कोलैबोरेट किया, आपने सबके पॉइंट्स को याद रखा, ये बहुत अच्छी बात है कि एज अ टीम आपने उसको इंट्रोड्यूस किया बेसिकली, राइट? कि मैम इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, दैट्स गुड पॉइंट. ठीक है, लेकिन जैसे सौरभ ने भी ऐड किया बाद में, ठीक है, तो वो चीज आप बोल सकते हो. आपने ऑलरेडी मेंशन भी कर दी थी कि मैम बैलेंस होना बहुत जरूरी है दोनों में. ठीक है, तो उसको थोड़ा स्ट्रांगली आप इंटरप्रेट कर सकते हो. ऑल राइट ऋषभ, और आपने 3 टाइम्स आई थिंक एंटर किया पार्टिसिपेशन में, आप थोड़ा सा और भी ज्यादा ट्राई कर सकते हो. ऑल राइट, गुड ट्रायल. ओके, दानिश, आर यू देयर? यस मैम. हाँ, दानिश, आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया. यू हैव एंटर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 9 to 10 टाइम्स आपने पार्टिसिपेट किया, अपना कंटेंट दिया, अपने आइडियाज दिए बेसिकली. ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आई वुड से. फर्स्ट ऑफ ऑल ये. दूसरी बात, आपके एग्जाम्पल्स भी अच्छे थे कि हाँ विराट कोहली ने ऐसे किया, या फिर इसका मतलब तो वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री विल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि वो डिटर्मिनेड नहीं है अपने गोल्स को लेके, वो इसलिए कर पाया कि वो डिटर्मिनेड था. राइट, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी थी, क्लैरिटी ओवरऑल सबको थी कहीं ना कहीं, बट ये टॉपिक एक ऐसा है जो साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगेन तो हम कहीं ना कहीं इसको उलझा देते हैं बेसिकली. ठीक है, तो दानिश, दैट इज गुड थिंग वट एवर यू हैव स्पोकन. आपने विराट कोहली का जो है एग्जाम्पल दिया, आपने और भी चीजों को एग्जाम्पल दिया, लेकिन सेम चीज आपके और शशांक के जो पॉइंट्स थे वो थोड़े सिमिलर थे, है ना? और आप दोनों की डिस्कशन भी चल रही थी कि आई एग्री विद यू और आई डिसएग्री विद यू लाइक दैट. ठीक है, तो आपके पॉइंट्स छोटे थे, ठीक है, आपने इतना टाइम नहीं लिया, इसीलिए आप इतनी ज्यादा बार उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाए. बट दानिश, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि हमारे आइडियाज ज्यादा सिमिलर भी ना हो. ठीक है, अगर उसने कुछ बोला है तो आप उसे थोड़ा सा डिफरेंट हटके बोलो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब उसको थोड़ा ऐड ऑन करो, ना कि उसी चीज को आप रिपीट करो. ओके. ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी कमी लगी, अदरवाइज आप यू हैव वन द मैच, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी आइडिएशन भी दिए. ठीक है, लेकिन एक चीज का और थोड़ा ध्यान रखना है, हम किसी भी टाइप के स्पीकिंग एरा में होते हैं, किसी भी टाइप के इंटरव्यू में होते हैं, या ग्रुप डिस्कशन में होते हैं बेसिकली, स्पेसिफिकली जब हम ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग कि और भी लोग हैं, तो हमें अपनी टर्न का तो ऐसे है कि हमें अपनी टर्न लेनी ही पड़ेगी खुद. ठीक है, बट थोड़ा सा एक चीजों को स्मूथ रन करना होगा. ओके. ऑल राइट, प्लीज समवन्स माइक इज ऑन, प्लीज टर्न इट ऑफ गाइस.
बाकी दानिश बहुत अच्छा अटेम्प्ट था आपका, बहुत अच्छा बोला आपने, बट अपनी आइडियाज में थोड़ी क्लैरिटी भी लेके आनी होगी, ठीक है। सो वो मतलब थोड़ा सा क्लियर रखना है चीजों को कि हाँ आप खुद उस चीज में कॉन्ट्राडिक्ट ना रहो, ठीक है। Yeah. आप बोल सकते थे कि हाँ डिटर्मिनिज्म इज लाइक बहुत ज्यादा जरूरी, 80% जरूरी है, ऐसे भी आप थोड़ी क्लैरिटी भी ला सकते हो। एंड आई नो क्योंकि टॉपिक बिल्कुल क्लैरिटी का नहीं है तो हम इसमें पूरी परसेंटेज या नहीं दे सकते हैं, राइट। बट आप ऐसा बोल सकते थे कि डिटर्मिनिज्म जो है वो हमें बाउंडेड रखता है लेकिन हमें स्ट्रांग भी बनाता है, हमें स्ट्रेंथ भी देता है उस चीज को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। वेयर एज जो हमारा फ्री विल है, एक चीज समझो, और प्लीज ये चीज सिर्फ दानिश के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए मैं बोल रही हूँ। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म जो हमारा टॉपिक है, ये एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है, ऑलराइट। तो इसमें हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हमें क्या टॉपिक देने चाहिए क्या नहीं। जब आप अगर सच में आप दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा बोल रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हो या साथ में मिक्सर करना चाहते हो, तब ये भी तो बोल सकते हो ना कि फ्री विल जो है हमारे थॉट्स में होनी चाहिए, लेकिन while we are implementing those things we have to be determined. Am I clear? Yes, ma'am. Is this clear? Yeah. So well done, Manish. You may improve this. Okay. Okay. Yeah. Okay. Saurav is there. Yes, yes. Okay. So Saurav, आपने बोला कि फ्री विल है तो कम चांस रहेंगे सक्सेसफुल होने के, वेयर एज अगर डिटर्मिनिज्म होगी तो हमारे पास ज्यादा चांसेस होंगे, यही बोल रहे हो? या मैम, या मैंने उसको कोरिलेट करके थोड़ा बोला। हाँ, कोरिलेट करके बोला था आपने। ऑल्सो आपने 4-5 बार एंटर करने की कोशिश की, दैट इज गुड। लेकिन सौरभ, जब आप आइडियाज अपने डिलीवर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा लिथार्जिकनेस नहीं होनी चाहिए, लेजीनेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। मीन्स ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा कोरिलेट करेंगे, वो ठीक है, हम कोरिलेट तो हमें करना ही है आफ्टर ऑल, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा अपने आइडियाज को प्रूफ भी करना पड़ेगा, समझ आई? आपने ओके। इनिशिएट लिया, यू वर सेइंग कि मैम मैं स्टार्ट करूं, ठीक है। जब जीडी स्टार्ट होता है तो यू शुड टेक 3 मिनट्स टू थिंक ओवर इट, इसीलिए नीरज ने भी लिए थे। आपके पास जो पूरे 2 या 3 मिनट होते हैं आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है। कि आप उस पॉइंटर्स को पैराफ्रेज करके अपने माइंड में लिखो या नोटबुक पे लिखो, लेकिन आप जब उसको बोल रहे हो उसको डिलीवर प्रॉपरली करो। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जस्ट बोलने के लिए बोल रहे हैं या कुछ है। जो स्ट्रॉन्ग कंटेंट है वो थोड़ा क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, ओके मैम। ठीक है सौरभ। बाकी आपने अच्छा बोला, लास्ट में आपने ठीक बोला, अच्छा पॉइंट था, इज अ गुड पॉइंट दैट वी शुड हैव बीन हाइब्रिड थॉट्स और लाइक दैट, कि एक अमेलगमेशन होनी चाहिए थॉट्स की, ठीक है। एक अमेलगमेशन होनी चाहिए दोनों की, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की। वही चीज जो मैं बोल रही हूँ कि फ्री विल हमारे माइंड में होनी चाहिए, दैट वी आर फ्री टू थिंक ओवर एनीथिंग, राइट? यस मैम। या, सो गुड। ही इज लाइक अरित्रा, अरित्रा इज देयर। Yes, ma'am. या ओके अरित्रा, मुझे ऐसा लगा कि आप भी थोड़े से मतलब नर्वस थे, लाइक आई वोंट से नर्वस, मतलब थोड़ा सा आपका बैकलॉग चल रहा था। आपने ट्राई किया, आप कम से कम 4 बार ही आपने एंटर किया, बट आप सबका वेट करते हो तो वेट नहीं करना है, ठीक है। एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि हाँ सामने वाला बोल रहा है तो आई शुड कीप लाइक, है ना। बट स्टिल हमें फॉरवर्ड आना है, हमें दिखना है, हमें बोलना है। वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ कि यस वी आर देयर एंड वी आर टॉकिंग, वी आर सेइंग समथिंग, ठीक है। आपने बोला बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। आपने पॉइंट अच्छा दिया कि डिटर्मिनिज्म फ्री विल से सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन हमें करने के लिए डिटर्मिनिज्म होना जरूरी है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो कई बार ऐसा आपने एक चीज बोली कि मैम डिटर्मिनिज्म अगर होगा तो प्रेशर भी होगा, शायद दानिश ने कोई चीज बोली तो आपने उसको कोरिलेट करा कि अगर हम इतना डिटर्मिनिज्म रखेंगे तो हम प्रेशराइज भी फील करेंगे, राइट। बट हाउ कुड इट बी प्रेशराइज? प्रेशर लेने से होता है ना। डिटर्मिनिज्म इज नॉट गिविंग यू प्रेशर, इट इज गिविंग यू अ डेडिकेटेड विल, यस आई हैव टू डू दैट। अगर मैंने सोचा है कि नहीं मुझे अपना यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसमें प्रेशर कैसा? अगर प्रेशर लूंगी तो वो तो कभी डिटर्मिनिज्म होगा ही नहीं, वो तो कभी क्लियर ही नहीं ना होगा ना, चाहे फिर मैं जितना मर्जी डिटर्मिनेंट हो जाऊं या जितनी मर्जी फ्री विल ले लूं, अगर मैं उसका प्रेशर लूंगी तो इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल, समझ आई?
ठीक है, तो दैट इज थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा मेरे को। अगर आप बोल रहे हो ना कि डिटर्मिनिज्म जरूरी है, तो डिटर्मिनिज्म जरूरी है, क्योंकि ये चीज एक बार आपने बोली भी है ना। लास्ट पॉइंट में आप बोल रहे हो कि मैम अगर डिटर्मिनिज्म ज्यादा होगा, आपने दानिश के लिए बोला, तो हम प्रेशराइज फील करेंगे। प्रेशर इज डिफरेंट थिंग। हो सकता है प्रेशराइज फील करें, बट वो एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है। डिटर्मिनिज्म कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप प्रेशर लो और वो डिटर्मिनिज्म का डेडिकेशन भी सारा खो दो। एम आई क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है, सो या एनीवन लेफ्ट जो रह गया, जिसके मैंने रिमार्क्स ना दिए हूँ? सौरभ, नीरज, शशांक, ऋषभ, दानिश एंड अरित्रा, राइट? यस मैम। ओके गाइस, बेस्ट पार्ट इज आप सब लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। यू गाइस हैव ट्राई टू पार्टिसिपेट 5 to 6 टाइम्स, ठीक है, 9 to 10 टाइम्स। पॉइंट्स भी अच्छे थे, लेकिन देखो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज, कहीं ना कहीं कुछ है। कमी ये है कि देखो यू शुड हैव टू मेक योर पॉइंट्स शॉर्ट एंड ब्रीफ। मतलब इतने शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए ऋषभ, जैसे कि आप फ्रेजेस दे रहे थे, तो फ्रेजेस भी नहीं होने चाहिए, वो सेंटेंसेस में होने चाहिए कि हाँ मैं ये बात प्रूव कर रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ। और वो इतने लंबे पॉइंट्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे शशांक आपने कई जगह 2 मिनट भी लगाए हैं, है ना। तो शशांक वैसे भी हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अकेले ही 7 मिनट ले लेंगे तो फिर हम डिस्कस कैसे करेंगे, डिस्कशन का पार्ट कैसे बनेंगे। ठीक है, दानिश आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, 9 to 10 टाइम्स एंटर भी किया उसमें, ठीक है, बट हमें थोड़े से पॉइंट को क्लैरिटी रखनी है। यस मैम। ओके, अब गाइस देखो ये जो टॉपिक है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, अब आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक इज, अपने रिमार्क सबको क्लियर है गाइस? या फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, आप फ्री विल के लिए बोल सकते हो कि अगर हम फ्री रहेंगे तो हम ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर मोर, वी कैन बी मोर क्रिएटिव, वी कैन बी हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होगा कि नहीं इतने टाइम में ये चीज करनी ही करनी है। ठीक है, हमारे पास एक चीज होगी कि नहीं यार, वी आर फ्री टू थिंक ओवर इट एंड वट एवर वी वॉन्ट वी कैन थिंक, वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। वो इम्प्लीमेंटेशन तक फ्री विल रहेगी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तब हम क्या करेंगे, तब हमें डिटरमिन होना पड़ेगा कि नहीं यार अब मैंने प्लान कर लिया है और अब हमें मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। फ्री विल बेसिकली प्लान करने के लिए बेटर होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वी शुड नीड टू बी लिटिल सीरियस। इज दिस थिंग क्लियर? अगर हम डिटर्मिनिज्म की अगर हम बात करें, आप डिटर्मिनिज्म भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर, डिटर्मिनिज्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन डिटर्मिनिज्म जो है कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हमें डिटर्मिनिज्म को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। और कॉम्प्लेक्स कैसे? कुछ इंडिविजुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको बहुत ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर लेते हैं कि नहीं यार अब मैंने ठान ही लिया तो मैंने करना है। बट ठान लिया और करना है और फिर प्रेशर लेना है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। समझ आई? हम ये पॉइंट दे सकते हैं डिटर्मिनिज्म में हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनिज्म हमें प्रेशर नहीं देता है, वो हमें एक डेडिकेशन देता है, एक मोटिवेशन देता है कि यस आई कैन डू दैट एंड आई हैव टू डू दैट। ठीक है, एंड देयर इज अ सेइंग दैट बिग थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। तो बड़ी चीजों के लिए हमेशा एक डिटर्मिनिज्म होना चाहिए। फ्री विल में मैं सिर्फ प्लान कर सकती हूँ, मैं अपने आप को टाइम दे सकती हूँ, ठीक है, बट डिटर्मिनिज्म में तो मुझे करना ही पड़ेगा ना वो एट द एंड। ऑल राइट? यस मैम। या ऑल ऑफ यू गाइस, सौरभ, नीरज, शशांक, क्या मेरे पॉइंट्स कुछ क्लियर हैं आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, ऑल्सो आप जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो आप प्लीज फिर उसी पेज पे रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में बहुत ज्यादा मतलब फैंसी कुछ करना है, या तो आप पहले ही वैसे स्टार्ट करो या फिर आप जो भी बोलो, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटेटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वांटिटी मैटर करती है। देखो दो ही चीजें दिखती हैं जीडी में, एक तो ये कि आपका कंटेंट कैसा था, क्वालिटी थी या नहीं थी, कैसे पॉइंट्स आपने दिए, आप कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हो, आप खुद ही तो नहीं फंस रहे हो अपनी चीजों में, लाइक दैट। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप कितनी बार उसमें एक्टिव हो, कितनी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव है, क्योंकि बेसिकली आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने का बहुत अच्छा ये एक क्राइटेरिया है कि आप कितनी अटेंटिव हो। अगर आप मन में जरा सा भी थोड़ा नर्वस फील करोगे कि नहीं आई शुडंट से कि आई एम स्पीकिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट समथिंग लाइक दैट,
it won't work. आपके points lose हो जाएंगे. All right? Okay, guys. All right. All the best.